تو آپ نے جو رات کو سٹے کیا یہاں پہ کتنے دانے آپ کو لگے ماشاءاللہ؟ ہمیں ماشاءاللہ 7 دانے لگے تھے جی، ایک اس کے اندر ٹوٹ گیا، 6 دانے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ زبردست بندے ہیں ادھر یہ دانے دیکھ رہے ہو آپ؟ جی باہر بالکل لاؤں گا، باہر بھی دیکھنا، یہ رات کا شکار ہے۔ صحیح ہے، دیکھو پھول ڈالو اوپر کر کے دکھاؤ میرا، یہ دیکھو رات کا شکار۔ زبردست، ٹھیک ہے سر جی، دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے ڈال دیں، اوکے۔ اوکے۔ تو اچھا میں نے یہ یہاں پہ سنا ہے ہیڈ محمد والی نہر پہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ کاٹ ہے۔ جی جی، ادھر اتنی شدید کاٹ ہے کیونکہ اس کے اندر سیپی ہے اور یہ کھڑا ہوا پانی ہے۔ اچھا پہ وہ شکاری کامیاب ہے جو صبر والا ہے؟ ہاں، صبر والا اور محنت کرے گا، یعنی کہ فوجی کی طرح جو پریڈ کرے گا۔ جی جی، ان کے لیے ایک سادہ سا جھاڑا بتا دیں جو 3-4 چیزیں ہوں جن سے وہ شکار پکڑ لیں۔ جھاڑا آسان سا ہے جی، دیکھو آپ کھال لے لیں، باداموں کی لے لیں، یا وہ کنولے والی ایک پیلی کھال ہوتی ہے، جی جی اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو چاول ابائل کریں۔ صحیح ہے، چاول ابائل کرنے کے بعد لیکن یہ دہاڑی کی نسبت یہ کام پیسے کے لحاظ سے صحیح ہے یا؟ یہ پیسے کے لحاظ سے صحیح ہے، لحاظ سے مراد یہ صحیح ہے اگر 2 دن بھی نہیں بنا ہے، ہاں جی، 1 دن بھی نہیں بنا ہے، ہاں، یہ تیسرے دن بھی بن گیا نا، سارا برابر کرتے ہیں، یعنی کہ کام بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ اگر یہ تو وہ کام ہے کہ آپ کی ایک مثال ہے، دہاڑی ہے 1000 روپے، ہاں جی آپ کی ہے 1500 روپے، جی یا یہ جو کھیل ہے اس میں 2000 والا دانا بھی ہے، 3000 والا بھی ہے، ہاں، 1500 والا بھی اور ہے، اس طرح کے ہزاروں 800 دانے والا بھی ہے، ہوں۔ 5000 والا بھی ہے، 10000 والا بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بس لگنے یہ پہ ہے۔ نصیب کی بات ہے۔ صحیح۔ دوستو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں بہت ہی اچھی جگہ پہ، شکار والی جگہ پہ، اور یہ دیکھیں میرے ساتھ بہت ہی مشہور اس کے ملتان کے اور دارا دین پناہ کے بہت ہی مشہور شکاری ہیں۔ یہ دیکھیں یہ الیاس بھی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہیں غفار بھائی، تو ان کے ساتھ میری گپ شپ فل ہے ماشاءاللہ، اور یہ جہاں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اپنا نام بنا کے اٹھتے ہیں یہاں سے۔ اور باقی جو ہے آج کی اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کرنے والا ہوں کہ یہاں پہ کتنا شکار ہو رہا ہے، اس جگہ کا ایڈریس کیا ہے، یہاں کی کیا کنڈیشن ہے، کیا لگ رہا ہے، اور جو ڈمبرا ہے، ملی ہے، سنگارا ہے، جو بھی لگ رہا ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے، اگر آپ شکار کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک واچ کرنی ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی۔ سر، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، بہترین، شکر ہے جی اللہ کا۔ سر جی، یہ ولاگ جو بن رہا ہے آج بہت ہی زبردست ولاگ بننے والا ہے۔ آپ نے اس میں کچھ سیکریٹ ٹپس بھی دینے ہیں آپ نے جی جی ان شکاریوں کو جو نئے شکاری ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، باقی یہاں کی آپ نے اپڈیٹ بھی دینی ہے کہ یہاں پہ کتنا شکار ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا کوشچن یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کتنے دن آپ یہاں ہو گئے ہیں، آپ نے سٹے کیا ہوا ہے؟ ہمیں جی رولتے ہوئے تو کافی دن ہو گئے ہیں، اچھا، لیکن الحمدللہ شکار کافی ہو رہا ہے۔ ہم رمضان شریف کے تقریباً دوسرے تیسرے روزے سے آئے تھے، صحیح ہے، کبھی مین پہ چلے جاتے ہیں، کبھی نہر پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر مین پہ جال وغیرہ پٹی لگتی ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں، اگر جی جی، ادھر جال پٹی لگتی ہے تو ہم مین پہ چلے جاتے ہیں۔ زبردست، ہاں جی، ماشاءاللہ شکار ہمیں ہو رہا ہے، برابر شکار ہو رہا ہے، اچھا۔ ہاں، ڈیلی بیس پہ۔ تو آپ نے جو رات کو سٹے کیا یہاں پہ کتنے دانے آپ کو لگے ماشاءاللہ؟ ہمیں ماشاءاللہ 7 دانے لگے تھے جی، ایک اس کے اندر ٹوٹ گیا، 6 دانے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ زبردست۔ تو اچھا میں نے یہ یہاں پہ سنا ہے ہیڈ محمد والی نہر پہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ کاٹ ہے۔ جی جی، ادھر اتنی شدید کاٹ ہے کیونکہ اس کے اندر سیپی ہے اور یہ کھڑا ہوا پانی ہے۔ اچھا، ہاں جی ہاں جی، تو اس وجہ سے نا لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ہم بھی مجبوری کی وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ صحیح ہے، تو مین تو دیکھو جی، مین ہی ہوتا ہے نا، وہ جی رسکی بالکل پانی ہے، یہ کھڑا ہوا پانی ہے۔ صحیح کہہ رہے ادھر ہیں، کچھوے وغیرہ بھی ہیں اور بہت تعداد ہے اس کے اندر سیپی کی۔ صحیح ہے، یہ نہ آٹے کو چھوڑتا ہے نہ سانپے کو چھوڑتا ہے، صحیح ہے۔ اتنی شدید کاٹ ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں، اللہ معاف کرے، بڑی کاٹ ہے ادھر۔ یعنی کہ آپ نے اگر 2-3 ڈوریں لگائی ہیں تو 2 ڈور لگا کے جو پہلے آپ نے لگائی دوبارہ وہی لگانی پڑے گی، جی جی بالکل بالکل، صرف 2-3 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، جس طرح فوجی پریڈ کرتا ہے نا جی، جی جی، اسی طرح فوجی پریڈ ہے، جو فوجی پریڈ کرے گا وہ ادھر مچھلی مارے گا، صحیح، زبردست۔ باقی نہیں، ناکامی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ وہ شکاری کامیاب ہے جو صبر والا ہے۔ ہاں، صبر والا اور جو محنت کرے گا، یعنی کہ محنت، فوجی کی طرح جو پریڈ کرے گا، جی جی، پوری رات لگا رہے، پوری رات لگا سونا رہے۔ سونا یہاں پہ گناہ ہے، نہیں، سونے ٹھیک ہے، سونے والی بات نہیں ہے ادھر، سونا ہے صحیح تو ہے، گھر چلے جاؤ۔ زبردست۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بہت مشکل ہے ہاں جی، مشکل ہے مشکل ہے، لیکن یہاں پہ شکار بھی ہے۔ ہاں جی، شکار بھی ہے، صحیح ہے، الحمدللہ، جو محنت کرتا ہے اس کو اللہ پاک اس کا پھل دیتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے آپ کن کن جگہوں پہ کھیلتے رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو شکار زیادہ ہوتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کی بات کریں یا ملتان کی کسی بھی جگہ پہ؟
माशाल्लाह वैसे तो जी देखो हर बंदे ने सैलाब के अंदर चनाब के अंदर मच्छी मारी है, सही है, लेकिन हमारा इलाका है जी हेड तौसा बैराज का, सही है, दरिया सिंध का। सही है, तो दरिया सिंध पे उधर मछली ज़्यादा लगती है, या एक तौसा शरीफ का नल्ला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मछली लगती है। ज़बरदस्त, हाँ जी, 5 नंबर सीपर हो गया, 1 नंबर सीपर हो गया, 3 नंबर, 2 नंबर, हाकी सीपर सबसे ज़्यादा मशहूर है, सही है, हसन दरिया हो गया, जी जी। उधर बड़े बड़े दाने लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको सबसे बड़ा दाना कितना लगा है वहाँ पे? मुझे तकरीबन हसन दरिया पे 8.5 किलो का रोहू लगा था जी। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह, मेरे उस्ताद मेरे साथ थे, जी जी, उसने और मैंने मेहनत से माशाल्लाह 8.5 किलो का जी रोहू लगा है। झूठ बोलने की आदत नहीं है, लोग कहते हैं 15 किलो 20 किलो का रोहू लगा है, हाँ जी हाँ जी, लेकिन हमें 8.5 किलो का माशाल्लाह रोहू लगा था। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये हेड टाउन से भी अब ये शिकार कब शुरू हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? ये एक्सपीरियंस के मुताबिक जी इस तरह है कि अल्लाह आपका भला करे, जब ये फ्लड आएगा ना 6वें महीने में, जी जी, तो फ्लड के दौरान जो गवर्नमेंट के गोंदे होते हैं, हाँ जी, सैलाबी गोंदे जिनको कहते हैं, जी जी, उन सैलाबी गोंदों के अंदर जो पानी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मछली की काफ़ी तादाद होती है, सही है, नई पुरानी, उसके अंदर काफ़ी हमें यानी कि मेन खेलने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी मछली होती है उधर। ज़बरदस्त, हाँ जी हाँ जी, तो शुक्र है अल्लाह का, उधर काफ़ी ज़्यादा शिकार लगता है। सही है। फिर आप वहाँ पे कितने दिन स्टे करते हैं? अंदाज़ा महीना, 2 महीने, 3 महीने? वहाँ अपना घर है, मकसद है गर्मियों में तो हम जाते हैं 6वें 7वें 8वें महीने तक, सुबह को जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, सही है, और तकरीबन 9वें 10वें से हम यानी कि अभी बैठ जाते हैं, सही है, तो तकरीबन हफ्ता लगा लिया, 3 दिन लगा लिए, 5 दिन लगा लिए, इसी तरह शिकार होता है, हम बैठे रहते हैं, कोई ज़बरदस्त, काम वगैरह होता है तो अपने घर वापस आ जाते हैं, ठीक, वो ठीक। नज़दीक है उधर। सही है सर। तो सर आप हमारे ना व्यूवर्स को बताएंगे कि किसी भी मछली को पकड़ने के लिए दरिया के किसी भी कोने बंदा बैठे जो नया शिकारी है, क्योंकि पुराने शिकारी को तो वैसे पता होता है, तो उनके लिए एक सादा सा झाड़ा बता दें जो 3-4 चीज़ें हों जिनसे वो शिकार पकड़ लें। झाड़ा आसान सा है जी, देखो आप खल ले लें, बादामों की ले लें, या वो कनोले वाली एक पीली खल होती है, जी जी, उसको अल्लाह आपका भला करे, उसको चावल उबाइल करें, सही है, चावल उबाइल करने के बाद उसके अंदर चोखर हो, सही है, चोखर के अलावा कबूतर दाना हो उसके अंदर, सही है, तो दालें वगैरह हों उसके अंदर, जी, तो उसको ना आप भुरभुरा रखेंगे, सही है, वो हाफ के जी के तकरीबन ना हाफ के जी के बराबर आपने उसको फर्स्ट टाइम यानी कि झाड़ करना है, ज़बरदस्त, उसके बाद उसको आप पक्का कर दें बाद में, हाँ जी, इंशाल्लाह आपको चालें निकलेंगी जी। सही। उसी चराई का झाड़ा भी करना है और उसी को पक्का भी करना उसी है, को पक्का कर दें, यानी कि दोबारा चावल उसके अंदर थोड़े ज्यादा डाल लें, वो पक्की हो जाएगी। वो पक्की हो जाएगी। सही तो सही, थोड़ा सा मसलें हाथ से, जी जी, तो वो पक्का हो जाएगा। अगर ऐसे भुरभुरा रखेंगे वो यानी कि आप वेट डालेंगे वो फटेगा उधर जाकर। ज़बरदस्त हाँ, ज़बरदस्त, अगर ना फटे तो थोड़ा चोकर उसके अंदर मजीद ज्यादा डाल दें। वो फिर झड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा खुश्क रखेंगे ना वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली झड़ जाएगा ज़बरदस्त। जी। तो सर आप ये बताएं कि यहाँ पे आप माशाल्लाह आए तो आपको यहाँ पे कितने दाने लगे हैं रात को? हम जी इधर आए थे तकरीबन रात को ही 9-10 बजे पहुंचे थे, पहले मेन पे गए थे, हाँ जी हाँ जी, मेन का पानी सही नहीं था, तो डिस्टर्बिंग की वजह से इधर रात हम आए थे तकरीबन 10 बजे, और इधर आके थोड़ा बहुत झाड़ किया हमने, सही झाड़ है, के बाद तकरीबन 1 बजे रात को पहला दाना लगा, सही है, तो इंशाल्लाह उसके बाद माशाल्लाह लगता ही रहा है, यानी कि घंटे के बाद 1.5 के बाद कुछ सो भी गए थे, सही है, लेकिन माशाल्लाह इतनी ज़ोरदार शॉट करता है इधर, फिरकी बहुत तेज़ चलाता है इधर। सही है। हाँ जी, और साइज़ क्या है आपके अंदाजे के मुताबिक? साइज़ माशाल्लाह लग रहा है इधर 1.5 किलो, पौने 2 किलो, अच्छा, 2 किलो। ज़बरदस्त। तो अगर हो सके तो इलियास भी आप दिखा सकते हैं? हाँ, जी, इधर जी। कोई मछली दिखा। हाँ, मैं दिखाता हूँ जो रात का शिकार है आपको। जी जी सर, देखें। तो ये देखें माशाल्लाह, ये इलियास भाई हैं, बहुत ही फनी और मज़ाहिया बंदे हैं। हाँ, इधर ये दाने देख रहे हो आप? जी बाहर बिल्कुल, लाऊंगा, बाहर भी देखना, ये रात का शिकार है। सही है, देखो फुल जाल ऊपर करके दिखाओ मेरा बंदा। ये देखो रात का शिकार। ज़बरदस्त। ठीक है सर जी, देख रहे हो? ठीक है, डाल दें। ओके। ओके जी। अब आप ये बताएं कि आपको इस फील्ड में कितना तजर्बा हो चुका है? सन 2004 से इस फील्ड में चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन 21 साल हो गए। क्या गफार भाई के साथ ही आप अकेले गए? नहीं, अकेले भी खेल रहा है, मुख्तलिफ लोगों के साथ भी खेल रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे नोहियत के साथ, जैसे वक्त के साथ, सबके साथ खेल रहा है। सही सही, ज़बरदस्त। तो आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा शिकार कितनी मिकदार में पकड़ा है और सबसे कितना बड़ा ज्यादा दाना पकड़ा है? मिकदार जो 10 में सैलाब आया था ना हमारे तौसा बैराज में, हाँ हाँ, जिधर से हेड मोहम्मद ये
ये अब्बास वाला टूटा था। हाँ जी, हाँ जी, इसके बाद हमने तकरीबन 1 माह बाद हाँ जी, हाँ जी। हेड के तकरीबन 20-25 किलोमीटर नीचे जाके अच्छा 15 किलो तक, 14 किलो तक, 9 किलो तक, 8 किलो तक, 10 किलो तक रो पकड़े, माशाल्लाह, जबरदस्त। और 1-2 नहीं पकड़े हैं, अच्छा, तकरीबन 2-3 महीने पकड़ते रहे हैं लगातार। लगातार, 4-5 फिर रात में लगना था। फिर वो चरखी तो घुमा के रख देता होगा। चरखी नहीं, चरखी क्या घुमाते थे, वो बस अंत करते थे जैसे सही है, जबरदस्त। क्योंकि उसकी मिकदार भी तो वैसी है ना। फिर निकालते आप अकेले थे या कोई और भी था आपके नहीं, साथ? नहीं, वो उस्ताद होते, उस्ताद घराना होता था, तकरीबन 12 बंदों का, 10 बंदों का, 8 बंदों का टोला बन के जाता था। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। और चनाब में आपने कितना सबसे बड़ा दाना पकड़ा है? चनाब में बड़े से बड़ा दाना पकड़ा है मैंने इधर 4.5 किलो का, जाम वाली रहू का? रहू। हाँ, लेकिन अब जाम वाली जगह तो खत्म हो गई है। हाँ, लेकिन उससे बड़ा लगा था मुझे नहर में, वो आप झूठ बोल रहे हैं, वो दाना तकरीबन ही जोरावर दाना था, बड़ा था। अच्छा, वो उसने डोर को निकाला है ना, हाँ हाँ, ये टिल्लू से, सही है। टिल्लू से डोर को निकाल के जैसे चरखी चलाई है, हाँ, हमने डोर को हाथ जब रखा है, उसने कहा इधर से रह गया, ओ बस तेरी, उसने डोर तोड़ी है। ओ तेरी। हाँ, ऐसे जो लगा है दरिया की साइड पे ऐसे रुक किया है, हाँ हाँ, वो न पानी में आया है ना कशे, बस सीधा जो था वो सीधा ही गया है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो अच्छा इलियास भी, आखिरी क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स जो शिकारी हजरात हैं जी जी। उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें जो दरिया पे ना एक दूसरे से जो हसद होता है हाँ, वो उसको कैसे इग्नोर किया जाए और कैसे भाईचारा इख्तियार किया जाए? भाईचारा ये है भाई, देखो ये नसीबों की गेम है, बिल्कुल। किस्मत है ये, हाँ हाँ, किसी पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहिए, हर किसी का अपना नसीब है, जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो अपने बड़ों का अदब करके चलाना चाहिए, मेन चीज है उस्तादों की, हाँ जी, हाँ जी, उस्तादों के साथ उस्तादों की राय से चलोगे जी बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर वो ज़ाहिर वही होगा जो आपके जैसे उस्ताद होंगे, तो फिर आप में भी वही होगा, किसी से लड़ना, किसी के साथ गर्मी से पेश आना, हाँ, किसी के बाप की मिरास नहीं है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ये पानी है तो दोस्ती है, सही सही, पानी नहीं है तो हर कोई अपने घरों में है। ऐसे ही है, ऐसे बस ही इसमें इस वक्त में लड़ने झगड़ने, है। जी, किसी से बुरा भला कहें, कुछ नहीं बनना, सही कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल है ना। बस ये इसका मेन खुलासा है। जबरदस्त अब आपके साथ उस्ताद भी हो, आप भी अच्छे हो, जी, को लड़ना झगड़ना, किसी को डिस्टर्ब करना, साथ वाले को या साथ वाले को, बिल्कुल बिल्कुल। 1 दिन 2 दिन तो वो खेल लेगा, हाँ जी, चला जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ये लेकिन तो- वो आपको पता नहीं कहाँ तक याद करेगा, हो सकता है कहीं आपकी उसकी फिर मुलाकात हो, कहेंगे ये तो वही बेवकूफ इंसान है, हाँ जी, हाँ इसने जी, वहाँ। लेकिन नहीं है, इस वक्त को एंजॉयमेंट में आता है हर कोई, हाँ, इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। बस जबरदस्त किसी के साथ लड़ना झगड़ना, रल मिल के रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के साथ काम भी आना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान का ये काम है। सर जी बिल्कुल। बाकी हर किसी का अपना शौक है, वो अल्लाह ने जैसे तकदीर में लिखा है, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5। हाँ जी, हाँ जी, अब हमारे यहाँ रात इतनी काट है, इतनी काट है, बहुत शदीद काट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे हैं दाने, जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सही दाने लगे हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन है, इलियास भी आप हमारे उन व्यूवर्स को गाइड करें कि जो इस वक्त ना अपने हालात की वजह से, यानी कि रिस्क ना मिलने की वजह से बच्चे, उनके बाल बच्चे जो हैं भूखे हैं, तो अगर वो इस फील्ड में आएँ तो उनको दिहाड़ी कैसी बन सकती है और उनको किन किन हालात का सामना करना पड़ेगा? दिहाड़ी बन सकती तो मुराद ये है कि हालात इसमें जैसे भी आ जाए ना, हालात के साथ चलो। आप बिल्कुल। मिस्त्री के साथ करने जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो चौक पे जाके खड़ जाते हैं, जी जी जी, वो किस्मत है, किसी को बुलाता है, हाँ जी, हाँ जी, फिर आगे जो उसके पास चले जाते हैं, वहाँ भी धक्के दौड़े, ये नहीं आप वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये काम भी वैसे ही है, सही है, ये नहीं है कि भाई 24 घंटे एक जैसे हैं, हर रोज एक जैसा है, कभी तेजी कभी मंदा, लेकिन चलता है इंसान के साथ, पहले इसके साथ चलना पड़ता लेकिन ये दिहाड़ी की निस्बत ये काम पैसे के लिहाज से सही है या? है। ये पैसे के लिहाज से सही है, लिहाज से मुराद ये सही है, अगर 2 दिन भी नहीं बना है, हाँ जी, हाँ 1 जी, दिन भी नहीं बना है, हाँ, ये तीसरे दिन भी बन गया ना, सारा बराबर करते हैं, यानी कि काम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ये तो वो काम है कि आपकी एक मिसाल है, दिहाड़ी है 1000 रुपए, हाँ जी, आपकी है 1500 रुपए, जी, या ये जो खेल है इसमें 2000 वाला दाना भी है, 3000 वाला भी है, हाँ, 1500 वाला भी और है, इस तरह के हजारों 800 दाने हैं। वाला भी है, 5000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बस लगने ये पे है। नसीब की बात है। सही तो फिर सही, ये दिहाड़ी अच्छी है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए हैं कल से, हाँ जी, हाँ जी, भागते दौड़ते मेन पे गए थे, जी मेन से यहाँ आए हैं, वो मछली आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिहाड़ी बन गई है। जी वो बिल्कुल, कैसे बनाई है दिहाड़ी के, उधर हमें समझ नहीं आई, हमने रात नहीं देखी, हाँ हाँ, हमने रात को ही अपने आप को इधर ले आए जबरदस्त जबरदस्त, कि देखो सोना नहीं है, हाँ जी, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। बिल्कुल। हम रात को ही सामान सारा क्लोज किया, हाँ जी, क्लोज करके हम इधर आए हैं, जी अल्लाह पाक ने हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोल लग गए, अच्छे दाने लगे हैं, जी जी, बड़े प्यारे दाने हैं, साइज है 1.5 किलो 2 किलो, आपने देखा है। सही। अच्छा इलियास भी, वीवर जो है ना, जो नए शिकारी हैं वो चाहते हैं हमारा उस्ताद
कोई हमें मिल जाए तो क्या आप उस्ताद बनना चाहेंगे? उस्ताद क्या, जो लोग जहाँ जिस इलाके के भी हैं, जहाँ भी रहने वाले हैं, जी जी। ये काम तकरीबन ऐसा है, हर दूसरा बंदा इसका उस्ताद है। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन बगैर उस्ताद के शागिर्द कभी कामयाब नहीं नहीं, वो होता, से चाहे कोई भी शोबा हो। लेकिन अगर कोई आपसे शागिर्दी लेना चाहे तो क्या आप नंबर देंगे, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? वो अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई मुसलमान भाई मुसलमान के तामन करने में तो कभी नहीं घबराता। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर आप अपना नंबर दे दें, जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें एक काबिल उस्ताद मिले, तो आप अपना नंबर या गफ़ार भाई का नंबर दे दें ताकि वो आपसे कांटेक्ट गफार कर भाई सकें। का नंबर लिख लें। जी बताएं, गफार भाई अपना नंबर आप रिपीट करें कैमरे में। 0300 0346 54 62 54 443 400। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। 0346 जी 54 62 जी 443। ओके करें सर, थैंक यू सर। इस व्लॉग में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे टीचर आपको शेयर कर दिए हैं, नंबर भी उनका दे दिया है। अगर आप सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएं और दिहाड़ी हमारी अच्छी बन जाए, तो आप इनको टीचर बनाएं और आप इनसे सीखें। और अगर आपने मुलाकात करनी हो तो आप इनसे रब्ता करके आप इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत ही मुल्तान के अच्छे और ज़बरदस्त शिकारी हैं, आप इनसे मिलेंगे तो आप खुद यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको एक ऐसे अच्छे उस्ताद मिल गए हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से रहनुमाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।